Hello everyone, this is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to continue my last lecture, that is in the subject IAPM, Investment Analysis and Portfolio Management, which is SEM 5 subject in under the specialization of TYBMS Finance. So in my last lecture I had told you about investment environment. So we are going to continue with this topic. There are different types of investments, like some people do their investments in bank deposits, some people invest their money in mutual funds. There are options like shares. Some people buy gold and keep it in their lockers. They buy gold chips. Then some people do investments in currencies. Then some people invest in real estates. So there are different types of investments. It depends on certain aspects. Now what are these aspects? First and foremost, the age of the income. जब आप यंग एज में होते हैं, when you have started with your job, you are in a good profile, you are earning well, at that time your needs are different, and so your investment avenues are also different. You are ready to take risk in that age. Then in the middle age, people are more concerned about their children's education. Then after a certain period of time, the children's marriage. So at that time the investment avenues are different, and the returns from these investments are also different. So expectations are different. And in the third stage, it is like the retirement stage. So after retirement, what would be the source of income? How will I sustain myself? So all those things matter. So investment options depend on the age of that individual, then the income of that individual, like whether he is the only earning member in the family, or whether there are some other members in the family. That comes under the income aspect. What is the total income of the family as a whole? Then the number of dependents that are there in the family, whether it is a nuclear family, whether it is a joint family, who all are the other dependents in the family. All these things need to be considered when one is doing investments. Now in this unit, or in this series, I am specifically going to talk about certain non-marketable financial assets. इसको हम लोग सेफ एसेट्स भी बोल सकते हैं, एंड ये बेसिकली ऑल आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो ये जो एसेट्स होते हैं, ये बेसिकली आप कैपिटल मार्केट में, जैसे कैपिटल मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं. उसके बेस्ड कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सीरीज. बट टुडे आई एम गोइंग टू प्राइमरीली टॉक अबाउट द नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट्स. तो उसमें सबसे पहले जो आता है, पोस्ट ऑफिस के different schemes आते हैं. So post office is one of the oldest and the largest saving institution in the country. There are like post office का जो network है वो more than 1.5 lakh पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री हैं. एंड पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो रिस्क फ्री होती हैं. पोस्ट ऑफिस भी जैसे बैंक में अलग अलग स्कीम्स ऑफर होती हैं, तो वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी कुछ स्कीम्स ऑफर होती हैं. मैं आप लोग को बैंक एंड पोस्ट ऑफिस साइमल्टेनियसली आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहली बात, तो जैसे बैंक्स में हम सेविंग डिपॉजिट्स ओपन करते हैं, तो सेविंग अकाउंट्स पे हमको कहीं पे 4%, कहीं पे 5% ऐसे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. सो ये अगेन डिफर करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक. तो पोस्ट ऑफिस में जो आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4% का आपको इंटरेस्ट मिलता है. एंड मैक्सिमम डिपॉजिट आप आपके सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में एज एन इंडिविजुअल 1 लाख रुपीस तक का रख सकते हैं, एंड एज जॉइंट अकाउंट होल्डर्स आप 2 लाख का इसमें सेविंग्स करके रख सकते हैं. यहाँ पे आपको टैक्स फ्री बेनिफिट, मतलब इसके जो इंटरेस्ट इस पे जो हमको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में मिलता है वो आके आपको टैक्स फ्री होता है. देन द सेकेंड इज, जैसे हम बैंक में आरडी ओपन कर सकते हैं, आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट, तो वैसे ही
हम पोस्ट ऑफिस में भी आरडी ओपन कर सकते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब आप शुरुआत 100 मिनिमम आपको 100 रुपीज से स्टार्ट करना है, एंड इट कैन बी 100 देन 1000 100 देन 1000 देन 10,000, ऐसे आप मल्टीपल्स में कर सकते हो। तो आरडी जो है वो 5 इयर्स पीरियड के लिए आप आरडी खोल सकते हो, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5.8% मिलता है। बट आरडी में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब जो इंटरेस्ट आप कमाओगे उसके ऊपर आपको टैक्स रिडेम्पशन या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी मैक्स डिपॉजिट लिमिट ऐसे नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना आप मल्टीपल्स ऑफ 10 में आप इस अकाउंट में आरडी ओपन पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो। फिर जैसे हम बैंक में एफडी रखते हैं, जब हम बैंक में टाइम डिपॉजिट करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स डिपॉजिट। हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारे पैसे को ब्लॉक करके रखते हैं और उसके ऊपर बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में भी आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आपका पैसा जमा करके रख सकते हो, एंड दिस कैन बी फॉर 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स। और इसका जो टैक्स जो इस पे जो मिलता है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट आप इस पे अर्न करोगे, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, मतलब अंडर सेक्शन 80C आपको इस पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इस अकाउंट में यू कैन डिपॉजिट मिनिमम 1000 रुपीज़, एंड ये मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में होता है। यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम लिमिट ऐसे नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी ओपन करते हो, टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो, तो यू विल गेट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5.5%। 2 इयर्स के लिए करते हो तो भी 5.5, 3 इयर्स के लिए भी 5.5, एंड 5 इयर्स के लिए है तो 6.7% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सब अभी का जो करंट एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स जो है उससे मैं आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रही हूँ। देन इसमें पोस्ट ऑफिस में आप मिनिमम जो आपका ये जो एफडी जो है वो आके आप अंडर अ सिंगल अकाउंट आप 4.5 लाख रुपया तक का आप अपने अकाउंट में पैसा एफडी में रख सकते हो, एंड अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तो आप 9 लाख तक का आप उस जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के नाम से आप इस अकाउंट में पैसा रख सकते हो, एंड वॉट एवर इंटरेस्ट यू विल बी अर्निंग इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस of the number of years that you are keeping your money in the time deposit account. Then there is one more scheme which is offered by the post office. This is known as Kisan Vikas Patra. सो ये किसान विकास पत्र में भी आपको कोई मैक्सिमम डिपॉजिट ऐसे लिमिट अवेलेबल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड इसमें द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन बी फ्रॉम 8 to 7 मंथ्स। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट में कैलकुलेट किया जाता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एट करंटली एट 6.9%। और यहाँ पे जो होता है किसान विकास पत्र में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो वो डबल्स होता है आफ्टर 124 मंथ्स। यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट आपको कर सकते हो अंडर किसान विकास पत्र वो है 1000 रुपीज़, और ये भी आप मल्टीपल्स ऑफ 100 में खरीद सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम लिमिट ऐसे नहीं है। और एक अच्छी स्कीम जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है, दिस इज नोन एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सी दीज आर ऑल हम इसको गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, एंड दीज आर बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये आके पैसा आप एक्चुअली ये किसान विकास पत्र हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गया या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इसमें आप यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन सर्टन गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो इसमें कैसे होता है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और रिटर्न्स जो होती हैं वो गारंटीड होती हैं। सिर्फ इतना ही एक इसमें लिमिटेशन होता है कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स में आपको जो रिटर्न्स है वो आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न आपको देगा, बट नॉट लाइक जैसे हम शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो वहाँ पे बहुत सारा फैक्टर जो रहता है वो मार्केट के मूवमेंट पे रहता है। इकोनॉमी जैसे परफॉर्मेंस करती है उस हिसाब से जो शेयर्स की वैल्यूएशन होती है, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूएशन होती है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स अर्न होते हैं। बट वेरएस जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं इसमें आप एक फिक्स पीरियड के लिए आपका पैसा आप इन्वेस्ट करके रखते हो और उस पर आपको रिटर्न्स मिलता है। सो इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू गेट इज 6 to 8%। दिस इज ऑल्सो कंपाउंडेड एनुअली एंड ये पूरा आपको एवरी आफ्टर मैच्योरिटी आपको सेविंग्स इस NSE पर आपको अपने जो बेसिक अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऐड ऑन होके मिलता है। तो ये भी जो है इसमें भी आप मिनिमम अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ का NSE ले सकते हैं एंड देन ये भी मल्टीपल्स ऑफ 100 में आप इसको आगे आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो NSE में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज, NSE 5, NSE 6, NSE 7। अभी लेटेस्ट जो इशू है वो दैट इज NSE 7। देन another benefit that post office gives, even this facility is available with the public sector banks, so that is public provident fund। एक PF होता है जो कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में प्रोवाइड होती है, जहाँ पे एम्प्लॉय भी अपने शेयर का कंट्रीब्यूशन करता है और उसको एम्प्लॉयर के पास से भी कुछ अमाउंट हर मंथ एम्प्लॉयज़ के सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। द सेम अमाउंट इज़ contributed by the employer also, and at the end जब वो एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको उसका PF का पैसा जो होता है विच इज़ उसके इतने साल के सर्विस का जो जमा किया हुआ उसके सैलरी में से निकाला हुआ पैसा, थोड़ा परसेंटेज एंड एम्प्लॉयर ने भी जो कंट्रीब्यूट किया हुआ था वो दोनों पैसा पे इंटरेस्ट ऐड करके उसको एक कंसोलिडेटेड PF अमाउंट करके दिया जाता है। अनदर एक ऑप्शन अवेलेबल है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आजकल बहुत सारी कंपनीज में PF नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर लोग आके कंटिन्यूटी जॉब्स में नहीं रहती हैं तो उनका PF का ऐसे कोई उनका कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। सो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ PPF। सो ये PPF जो है इट इज़ ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एंड इट इज़ ऑफर्ड बाय द बैंक्स ऑल्सो। सो PPF पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ 7.5%। द ओनली डिसएडवांटेज इज कि PPF में द लॉक इन पीरियड इज फॉर 15 ईयर्स, यानी 15 इयर्स के पहले आप इस अकाउंट से पैसा कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और ये बेसिकली ये PPF ये बनाया ही इसके लिए कि ये आपका ओल्ड एज रिटायरमेंट प्रोविजन के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ तक का PPF अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड एक साल में आप मैक्स टू मैक्स 1,50,000 रुपीज़ तक का ही डिपॉजिट अंडर PPF आप करके रख सकते हो एंड द डिपॉजिट्स कैन बी इन लम सम और इट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। इस पे जो टैक्स बेनिफिट है वो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मिलता है। इसके दो ही सबसे बड़े लिमिटेशंस है। द फर्स्ट इज कि इसका लॉक इन पीरियड लाइक 15 इयर्स के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और इसकी बिकॉज ये लॉक इन पीरियड इसका 15 इयर्स होने की वजह से इसको लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी हम लिक्विडिटी कब कहते हैं? एनीथिंग विच वी आर एबल टू इमीडिएटली सेल एंड फेच मनी। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका PPF में आपने पैसा ब्लॉक कर दिया है 15 इयर्स के लिए, सो आपके पास इजी लिक्विडिटी नहीं होते, तो इसका लिमिटेशन लो लिक्विडिटी होता है। सो अभी मैंने आप लोग को पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में 5 चीज़ें बताई। द फर्स्ट वन वॉज एक बार हम लोग ये रिकैप कर लेते हैं। एक मैंने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स दैट इज सेविंग अकाउंट के बारे में बताया। दूसरा आपको मैंने पोस्ट ऑफिस RD के बारे में बताया। तीसरा आपको मैंने पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के बारे में बताया। देन आई टोल्ड यू अबाउट किसान विकास पत्र, national saving certificates and public provident fund. Now the next is bank deposits. So in banks many people go to the bank. There are bank also offers different types of schemes. We open different types of accounts. जो businessmen होते हैं उनके day to day business के लिए current account वो use करते हैं क्योंकि उसमें उनको overdraft facility मिलता है। then उनको benefits बैंक के पास से ज़्यादा मिलता है। उनको उनके पैसे पे उनको बैंक interest नहीं pay करती है, हालांकि बैंक उनसे
इंटरेस्ट चार्ज करती है क्योंकि बैंक उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देती है, बट उनके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ द ओडी फैसिलिटी अवेलेबल टू देम. सो करंट अकाउंट इज़ देयर. देन सेविंग अकाउंट होती है. बैंक अभी जो फिलहाल जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रोवाइड कर रही है, इट रेंजेस फ्रॉम 4% टू 5 to 5.2, कोई कोई बैंक्स में 5.5% तक भी देते हैं. और इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिटिल बिट हायर एंड नॉर्मल सिटीजन्स के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर. देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हम एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो एफडी पे अभी करंटली बैंक्स आके 5.15% से लेके 5.75% तक का इंटरेस्ट दे रही है. एंड आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं. आरडी में क्या है, आप मंथली एक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे अकाउंट से पर मंथ से फॉर एग्जांपल आई ओपन एन आरडी अकाउंट एंड आई say that for 1 year I want to have this RD account. So मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दूंगी कि एवरी मंथ मेरे अकाउंट से 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ जो आपको लगता है उस अकाउंट उतना अमाउंट का मेरा एक आरडी अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होना चाहिए. सो से फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपीज़ का आरडी अकाउंट ओपन किया. सो 2000 रुपीज़ मैंने जनवरी में डाला मेरे अकाउंट से, फेब्रुवरी में, ऐसे 12 महीने ख़त्म हो गए तो मेरे अकाउंट में 24,000 रुपीज़ जम जाएंगे एक साल में. तो 24,000 पे बैंक विल पे इंटरेस्ट ऑफ 6% या 6% का इंटरेस्ट मेरे को पे करेगी. कोई कोई बैंक्स में 7.25% तक का भी ऑफर करते हैं. इट डिपेंड्स, अगेन बैंक टू बैंक इट डिफर्स. सो उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आई विल बी गेटिंग माई प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने मंथली जो डाला था 2000 रुपीज़. सो एट द एंड ऑफ द ईयर इट बिकेम 24,000 रुपीज़. 24,000 पे एडेड इंटरेस्ट मिलाकर मुझे एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिल जाता है. सो ये सब जो अकाउंट्स है जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट्स, इसके सब बेसिक एडवांटेज ये है कि ये सेफ है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसमें एक कंपैरेटिवली रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है. एंड आपको हायर लिक्विडिटी, लाइक आप आपके सेविंग्स अकाउंट से भी कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आपके एफडी को कभी भी तोड़ सकते हो. देन इवन आरडी ऑल्सो यू कैन स्टॉप. सो दीज आर द एडवांटेजेस. हाउएवर देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. इसमें रिटर्न्स बहुत लो होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने साल भर मैंने 2-2 हज़ार रुपया डाला तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो 24,000 ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ नॉट गोइंग टू बिकम 30,000 या 35,000 या 40,000, ऐसे नहीं. सो कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो बैंक डिपॉजिट्स में या कोई भी इस बैंक के स्कीम्स में नहीं होती हैं. सो दिस इज बैंक डिपॉजिट्स. देन वन मोर डिपॉजिट इज देयर दैट इज कंपनी डिपॉजिट्स. जैसे बैंक्स में एफडी ओपन किया जा सकता है वैसे ही हम कंपनीज भी एफडीज एक्सेप्ट करती हैं. सो इसका जो पीरियड होता है वो भी फिक्स्ड होता है एंड इट इज़ गिवन द एफडी इज एक्सेप्टेड एज अ प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक्स ऑल्सो डू ऑल लाइक यहाँ पे कंपनीज आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. सो कंपनी डिपॉजिट्स जो होती हैं इस पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इट इज़ हायर देन द बैंक डिपॉजिट्स. बैंक डिपॉजिट्स में अगर वहाँ पे 5 या 6% तक का मिलता है तो यहाँ पे इट कैन बी 8% या 9% का हो सकता है. बट यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर बिकॉज कंपनी के डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं. बैंक्स में आपका पैसा आप जो रखते हो सेफ्टी होती है कि बैंक डूबेगा नहीं करके, बट कंपनी डिपॉजिट्स में देयर इज एन इनसिक्योरिटी इज देयर कि अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं किया, कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब सकता है. सो इसके लिए कंपनी डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड एंड इन केस द कंपनी फेसेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस देन द इन्वेस्टर मे लूज हिज money also. So investment when it is done in company deposits, the credit rating of the company is very important. पहले वो कंपनी के बारे में जानना, वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है उसके बेस में डिपॉजिट करना है कि नहीं, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की मदद ली जाती है. सो जो कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं, कंपनी डिपॉजिट्स पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गिवन बाय द कंपनी रेंजेस फ्रॉम 9% to 15%. सो स्टूडेंट्स,
today I basically told you about uh, all the non marketable options that are available. मतलब ये जो investments होती हैं इसको आप capital market में invest नहीं कर सकते हो. There are other certain schemes जिस पे investments किया जाता है, जैसे कि life insurance schemes है, then home loans लिए जाते हैं, then medical insurance लिया जाता है जिस पे tax saving आपको मिलता है, ULIP है, तो इस पे सब tax benefits, इसको हम tax saving schemes बोलते हैं. So I would like to conclude here that today basically I told you about the post office schemes, the bank deposits, the company deposits and the tax saving schemes. So these are all non-marketable financial instruments, means you cannot invest these instruments or use these instruments in the capital market. In the next series, my lecture series, I will be teaching you the marketable instruments like what are equity shares, debentures, preference shares, उसके क्या क्या features होते हैं, what are its advantages and disadvantages. So stay connected. Thank you.